So hello students, welcome back to the Smart Box. We were watching our first chapter of class 8 science, that is living world and classification of microbes. This is the part 3 of our video. In part 1 and part 2 we have completed each and everything, each and every basic of this chapter. This will be our concluding part of our chapter. Okay, now first of things that we have to discuss in this part is the classification of microbes. Okay, so we have studied the classification of microbes. These are bacteria, protista, fungi and algae. And one more, there is one more in it, that is virus. We have to study all this 5 classification of these microbes, but before that we have to read this. Okay, this is 1 meter is equal to 10 raised to 6 micrometer. Okay, so if anything you have to denote with micro, you use this sign. Okay, this sign is known as mu. Okay, this sign is known as mu. And nm means nanometer, it is written over here. Okay, so 1 meter is 10 raised to 9 nanometers and 1 meter is 10 raised to 6 micrometer. Okay, so next, bacteria. Now the bacteria are what can we say, that what are bacterias? Okay, so I'll be telling it over here. Okay, now what is bacteria? First one is bacteria. So bacteria का size क्या होता है? 1 micrometer till 10 micrometer is the size of bacteria. It is very small. Okay, it is the smallest. Okay, now what? Unicellular. First point in bacteria is what? It is unicellular. Now what do you mean by unicellular? I have told in previous videos also that unicellular means only one cell. इसका सिर्फ क्या होता है? एक ही सेल होता है. Okay, they are independent parasitic organism. They are independent. Okay, they do not want anyone, they do not want anything to be on which, वो उनको जो है वो खुद से ज़िंदा रह सकते हैं, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है. These are the examples of our bacteria. Okay, so this diagram you have to draw. दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, ये डायग्राम आपको बनाना है. एंड ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक, ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक आपको जो है लिखना है. ओके, so first is unicellular independent parasitic organism. These are what? Unicellular independent and parasitic organisms. They do not depend on any other organisms. Okay, sometimes many bacteria together form colonies. Okay, बहुत सारे bacteria जब एक जगह पर आकर के जमा हो जाते हैं, that space is known as what? Colonies. Okay, bacterial, second point is bacterial cell is prokaryotic with cell wall. Okay, now what do you mean by prokaryotic? Prokaryotic are that cells which do not have well defined nucleus, which do not have any well defined organelles. but यहाँ पर बैक्टीरिया एक ऐसा सेल है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज़ प्रोकैरियोट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट? उसके न्यूक्लियस वगैरह बराबर नहीं है, बट इट इज़ हैविंग अ सेल वॉल इन इट. ओके, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. एज आई सेड कि बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो है वो उसके अंदर नहीं होते हैं, बट देर इज़ अ सेल वॉल इन द बैक्टीरिया. नेक्स्ट पॉइंट इज दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन. नाउ यू नो बाइनरी फिजन क्या होता है. बाइनरी फिजन मीन्स समझो ये कोई एक चीज़ है, वो बीच में से टूट जाएगी और 2 बन जाएगी. दिस इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन. ओके, in favorable conditions bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. Okay, अगर इनका favorable condition है, यानी ये एक ऐसे condition में है जहाँ पर they can live आराम से. okay, आराम से रह सकते हैं, then in that condition they can just double their number. okay, अगर 10 million बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है एंड इफ़ योर बॉडी इज़ कंफर्टेबल. ओके, बैक्टीरियाज के लिए अगर आपकी बॉडी एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाती है तो 20 मिनट्स में वो कितने हो जाएंगे? 20 मिलियन. फिर नेक्स्ट 20 मिनट में वो कितने हो जाएंगे? 40 मिलियंस. नेक्स्ट 20 मिनट में कितने हो जाएंगे? 80 मिलियन. ऐसे वो खुद को क्या करते रहेंगे? डबल करते रहेंगे. एंड दैट्स वाई हम क्या पढ़ते हैं? इतनी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं. ओके, so this is the diagram. You have to remember all the example: coccus,
कोको बैसिलस, बैसिलस वाइब्रियो, स्पिरलम, ये सारे एग्जाम्पल जो है आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर प्रोटोजोआ। सबसे पहले साइज देख लेते हैं। साइज इज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर, ओके। 200 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ प्रोटोजोआ. Protozoans means it is the plural form of protozoa. Protozoans are found in soil, fresh water and sea water, okay. These are the three space where we can find protozoa. कहाँ पर? In soil, fresh water and sea water. Some are found in the body and other organisms are pathogenic, okay. Other वो जो है बाकी जो है दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं एंड पैथोजेनिक का मतलब है ऐसी चीज़ जो आपको बीमार कर दे, ठीक है। दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल, ओके। सो दीज आर यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? इनके पास भी एक ही सेल होता है, बट दोज आर यूकैरियोट का मतलब न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, ओके। न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स आर ऑल्सो वेल डिफाइंड, इसका मतलब होता है यूकैरियोट, ओके। Third point is there is great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoa, okay. इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किस किस चीज़ में वेरिएशन है? सेल स्ट्रक्चर में, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन. व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन? लोकोमोशन का मतलब होता है ट्रैवल करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ. सो पैरामोशियम, ये सारी चीज़ें प्रोटोजोआ जो है वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके. सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ट्रैवलिंग. पैरामोशियम में आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दीज हेल्प्स टू these helps to travel, okay. But in different protozoa different organs are there so that they can travel from one place to another, okay. Next is these organisms reproduce by cell division, okay. This is an important point, that these organs they reproduce by what? Cell डिवीजन, ओके. सेल्स का डिवीजन होता है एंड उससे दे क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल्स आर व्हाट? फर्स्ट एग्जाम्पल इज अमीबा, पैरामोशियम, फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर. दीज टू आर फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर. डर्टी वाटर में आपको अमीबा एंड पैरामोशियम मिलेगा ही मिलेगा, ओके. नेक्स्ट इज एंटेमोइबा एंड Entamoeba histolytica, okay. This is causes amoebiasis, okay. Plasmodium vivax causes malaria, Euglena autotrophic, okay. So you don't have to learn all this. If you just write amoeba and paramecium also, you will get the marks in exam for protozoa, okay. नेक्स्ट इज फंगाई, ओके. फंगाई का जो साइज होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 micrometer to 100 micrometer, okay. These are found in decaying organic matter and dead bodies of plants and animals. अब ये यहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हम पहले से पढ़ रहे हैं चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से. ये these are found in decaying organic matter. What do you mean by डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर? डीके का मतलब होता है जो चीज़ क्या हो रही है? सड़ रही है. जो चीज़ खराब हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? डीके बोलते हैं. ऑर्गेनिक मैटर, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक मैटर? समझो लीव्स हो गया, ओके. डेड एनिमल हो गया, और क्या हो गया? हमारा किचन वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट. These all things are what? Organic matters, okay. So इन सब चीज़ों पे क्या लग जाता है? फंगस लग जाता है, okay. And dead bodies of plants and animals, these also comes in organic matter itself. तो dead bodies of plants and animals पे आपको जो white layer बना हुआ मिलेगा, that is nothing but the fungi, okay. These are eukaryotic organism, okay. These are eukaryotic and some are unicellular and other visible with naked eyes, okay. तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, इनके पास भी एक ही सेल होता है एंड दे आर विजिबल बाय नेकेड आइज, यानी हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं, है ना. इफ़ देयर इज़ अ फंगस ऑन आवर ब्रेड और एनी एनिमल और एनी प्लांट और एनी वुड, वी कैन सी अ वाइट लेयर ऑन इट. दैट वाइट लेयर इज नथिंग बट द फंगस, ओके. सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट वी कैन सी द फंगस विद आवर नेकेड आइज, ओके. एंड दोज आर व्हाट? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक? अगेन, जिनका जो है न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है एंड सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो वेरी गुड, ओके. नेक्स्ट इज इट इज
saprotrophic absorb their food from decaying organic matter. Saprotrophic means the things, the organism which depend upon other organism, other dead organism for their food are known as what? Saprotrophic. They reproduce sexually and asexually by cell division or budding. Okay, now now cell division तो हमको समझ में आता है कि ये सेल रहेगा, उसके अंदर से जो है एक और सेल निकलेगा एंड दैट विल बी व्हाट? नथिंग बट सेल डिवीजन. ये इस तरह से सेल डिवीजन होता है और वो दो सेल बन जाते हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर न्यूक्लियस. ओके, दीज आर न्यूक्लियस. ओके, तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये सेल डिवीजन होता है. नाउ व्हाट इज बडिंग? नाउ यू ऑल नो दैट इफ देयर इज अ प्लांट, ओके, और उसका ये स्टेम्प है, अगर ये आप स्टेम्प कट करो और उसको फिर दूसरे मिट्टी में लगा दो तो फिर इसमें भी ऐसे ऐसे झाड़ उगने लग जाता है ना. दैट इज नोन एज बडिंग. सो द सेम थिंग्स हैपन्स इन फंगाई ऑल्सो, बिकॉज फंगाई इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट इटसेल्फ. ओके, सो दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड एसेक्शुअली एंड सेल डिवीजन और बडिंग से वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल्स आर बेकर्स यीस्ट, candida and mushroom. We have studied these examples before also. Okay, so this was our fungi. Next is our algae. एल्गे का साइज क्या होता है? एल्गे इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज दे आर एक्वेटिक. आई हैव टोल्ड दैट व्हाट आर एक्वेटिक? जो भी वाटर में रहता है, जो भी चीज़ पानी में पाई जाती है, दैट इज नोन एज व्हाट? एक्वेटिक. इफ यू टॉक अबाउट एक्वेटिक एनिमल देन व्हाट डज इट मीन? कि ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. सेकेंड इज यूकैरियोटिक. इट इज़ यूकैरियोटिक. अगेन उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, सेल ऑर्गेनल्स सारे अच्छे होते हैं. यूनिसेल्युलर यानी एक ही सेल होता है. एंड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. ऑटोट्रॉफिक यानी खुद का फूड जो है खुद बनाता है. दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ओके, सो दे आर इंडिपेंडेंट फॉर फूड. वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं फॉर फूड. ओके, थर्ड इज फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल. ओके, सो वी ऑल नो दैट क्लोरोप्लास्ट जो होता है वही जो है प्लांट को क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर देता है. सो एल्गे को भी जो ग्रीन कलर देता है दैट इज नोन एज व्हाट? क्लोरोप्लास्ट. एंड बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी होगा. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अगेन फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट अ प्रोसेस बाय विच अ प्लांट मेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है इसका? कॉलेरा और Chalmedomonas. Okay, these are the two examples for algae. Very few species of algae are unicellular. Most of them are multicellular and visible by naked eyes. बहुत कम ऐसे algae होते हैं जो unicellular होते हैं, जिनका एक ही सेल होता है, वरना ज़्यादातर क्या होता है? multicellular means many cell. Okay, they have many cell. ऐसे बहुत कम होते हैं जो unicellular होते हैं. Most of them are multicellular and can be visible by naked eye. यानी हम उनको जो है अपनी आँखों से भी देख सकते हैं. We don't use any scopes for it. Okay, लास्ट पार्ट इज अवर वायरसेस. ओके, सो वायरसेस यू ऑल कैन रिलेट बिकॉज यहाँ पर अभी जो है पेंडेमिक चल रहा है उसके अंदर कोरोना वायरस एक वायरस है. ओके, सो यू ऑल कैन रिलेट वायरसेस जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ. इट्स साइज इज 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर. इट्स वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज. नेकेड आइज से हम इसको देख ही नहीं सकते. ओके, जनरली viruses are not considered as living organism or they are said to be organism at the edge of the living non-living. They are studied under microbiology. Okay, तो यहाँ पर वायरसेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम ना ही बोल सकते कि ये जिंदा है, नॉर इट इज़ लिविंग नॉर इट इज़ नॉन लिविंग. ओके, वो जिंदा भी नहीं होता है, वो मरा हुआ भी नहीं होता है. इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. ओके, इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. लाइक zombies हम बोल सकते हैं. zombies जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिंदा भी नहीं होते हैं. उनका सिर्फ दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो काम कर रहा होता है. दैट्स वाई दे कैन मूव, दे कैन रन, दे कैन वॉक. ओके, बट वायरस इज द सेम थिंग. ओके, इफ वी कंसीडर वायरस एज अ ज़ॉम्बी तो कुछ भी गलत नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग. ओके, सो वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट. ये बहुत छोटे होते हैं.
they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only in electron microscope. Okay, जो normal microscope we have in school and in colleges, उसके अंदर हम वायरस को देख भी नहीं सकते. We need a very powerful microscope that is known as electron microscope. Okay, so they are 10 to 100 times smaller than bacteria. बैक्टीरिया से ये 10 से 100 गुना छोटे होते हैं and can only be seen under electron microscope, और कोई माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में we can't see this. Okay, second point is they are found in the form of independent particles. They are independent particles, वो हवा में उड़ते रहते हैं. We just saw कि उनको जीने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही हवा में भी उड़ते रहेंगे, पानी में रह जाएंगे. They enter our body with all these things and फिर वो हमें क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं. Virus is a long molecule of DNA. Okay, what is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. Okay, this is the full form of DNA. Y'all can be asked this thing in fill in the blanks also. So आपको DNA का full form पता होना चाहिए. Okay, और RNA, what is RNA? राइबोन्यूक्लियाई एसिड. ओके, RNA एंड DNA का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए. कवर्ड बाय प्रोटीन कोट. ओके, इनके ऊपर एक कोटिंग होती है दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोटीन कोट. ओके, अगर हम ऐसे कोरोना का भी फोटो देखेंगे तो ऐसा ऐसा रहता है कोरोना, है ना, इसके ऊपर जो है लाइक दिस वी हैव मेड सम. तो ये जो होता है ना, ये जो कवर है दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड ये बना होता है DNA और RNA से. ओके, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज viruses survive only in living plants and animal cells, produce their own protein with the help of host cell and create their numerous replica. अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वायरस जो है ना वो किसी भी प्लांट या किसी भी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ही जो है वो ज़िंदा रह सकता है. एंड व्हेन दे एंटर द बॉडी ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल दे रिप्रोड्यूस देमसेल्फ. तो वो खाना कैसे बनाते हैं? द वॉट एवर प्रोटीन वी ईट, वॉट एवर न्यूट्रिशियस फूड we eat, they just absorb the food from it and they make their own food and फिर वो अपने replicas बनाते हैं, यानी they start reproducing. Okay, so they start reproducing, then they destroy the host cell. Okay, then जिससे वो लोग खाना ले रहे हैं, यानी हमसे ही वो खाना ले रहे हैं, and फिर they start destroying ourselves. Okay, and become free. फिर उनको हमारी ज़रूरत नहीं रहती है, उनके पास इतना खाना बन जाता है कि they can survive without us and they start killing us. These free viruses gain infect new cells. Okay, so whatever new cell is made by our body, they start infecting it. Fourth is viruses cause many diseases to plants and animals. Okay, so अभी जैसे देख सकते हो आपके कितने सारे diseases हमको फैल रहे हैं because of corona virus, that is a virus. Okay, so we can relate it. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. यहाँ पर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.